Good morning, students. Welcome back again in today's our online lecture. Myself, Vijay sir. I am from Goregaon Municipal Secondary School. In last lecture, we learned about the story of great scientist who was Michael Faraday. In this story, we learned that Michael Faraday was born in a very poor family of London. In his childhood, he faced speech defect, so his formal education was stopped. But by hard work, he became a successful person in his life. He became a great scientist. He invents induction motor, generators, and so many electric applications. And in last of the lesson, we learned that there were two lines. If you wish to upon the star, then no matter who you are. मतलब कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है किसी कार्य को अंत तक ले जाने का, तो वहां पर ये देखा नहीं जाएगा कि आप कौन हो. And today we are going to learn the story of reading works of art from 9th standard textbook. This story is about Said Haider Raza and his abstract paintings. So now we will start our today's topic. Here is the screen in front of you. Please focus on the screen. Try to understand the meaning of difficult words as well as the meaning of lesson. So let's start, my friends. Reading works of art, Said Haider Raja. Said Haider Raja, popularly known as Raja, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combination, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings. And so are the colors blue and orange. You will find them in almost all his paintings. None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint. Attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. This is the first paragraph of this lesson. देखिए क्या कहा गया है. The lesson is about the life of Said Haider Raza and his abstract paintings. इस कहानी में हम सईद हैदर रजा, इनकी लाइफ के बारे में और उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है उन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, सईद हैदर रजा, पॉपुलरली नोन एज रजा, वाज अ रिनाउंड इंडियन आर्टिस्ट. सईद हैदर रजा ये जो है पॉपुलरली नोन एज रजा, जो लोकप्रिय है. किस नाम से लोकप्रिय है? रजा इस नाम से लोग उन्हें जानते हैं. मतलब रजा इस नाम से वह फेमस है. जैसे कि सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में हम उनको लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर इस नाम से जानते हैं.
बिल्कुल ऐसे ही सईद हैदर रजा ये जो है लोगों में रजा इस नाम से वह फेमस थे, एंड ही वाज रिनाउंड इंडियन आर्टिस्ट, और वह बहुत ही रिनाउंड, रिनाउंड मतलब पॉपुलर, फेमस, बहुत ही एक फेमस या फिर जिसे पॉपुलर हम बोलते हैं, ऐसे एक भारतीय कलाकार थे। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings। देखिए उनकी पेंटिंग्स की कुछ विशेषताएं बताई गई है। यहाँ पर ऐसे सवाल पैदा हो सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजास पेंटिंग्स। एट दैट टाइम वी हैव टू आंसर सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स मतलब क्या, जैसे ज्योमेट्रिक के शेप्स हमें पता है, सर्कल होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, ओवल होते हैं। तो ये जो शेप्स है दैट्स कॉल्ड सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्री में जिस शेप्स का यूज किया जाता है। स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, और उन्हीं शेप्स में कलर का कॉम्बिनेशन। स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन मतलब कि जो आपके दिल को छू ले, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन वहां पे किया जाता है। एंड कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, और कंपोजिशन करना मीन्स किसी चीज की रचना करना। तो इस तरीके से उसकी रचना की जाती है, उस शेप्स को अरेंज किया जाता है, अरेंज करने के बाद उसमें कलर किया जाता है, और कैप्टिवेट करते हैं, मतलब वो हमारे मन को भा जाते हैं, हमें लुभाते हैं। ऐसी वहां पर रचना उन आकृतियों की जाती है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिज पेंटिंग्स। और यही यही मतलब कौन सी, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन एंड कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिज पेंटिंग्स। यही उनके पेंटिंग्स के कुछ फीचर्स है, विशेषताएं है। एंड सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज। और आगे उन्होंने कहा है सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज, मतलब उनके पेंटिंग में ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब ये भी उनके पेंटिंग की क्या है, विशेषता है। दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ हिज पेंटिंग्स। स्ट्राइकिंग simple geometric shapes, striking color combination, captivating compositions, blue and orange color, these are all the features of Sayyid Haider Raza's paintings. You will find them in almost all his paintings। देखिए, you will find them मतलब उनको, you will find them, आप उन्हें ढूंढोगे, किसे ढूंढोगे, तो ब्लू एंड ऑरेंज कलर, ये जो ऊपर बताया है, इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स, आप उनके सभी पेंटिंग्स में ब्लू और ऑरेंज कलर को ढूंढोगे। ज्योमेट्रिक शेप्स आपको दिखाई देंगे, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, ये सब जो ऊपर उनके फीचर्स बताए गए हैं, ये सब आपको उनकी ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स, उनकी सभी पेंटिंग्स में आपको दिखाई देगा। None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment। देखिए आगे उन्होंने कहा है none of his paintings, none of his painting मतलब उनकी कोई भी पेंटिंग, कोई भी, none of his paintings depict करना मीन्स शो करना या डिस्क्राइब करना, depict life like human figures मतलब उनकी कोई भी पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स के बारे में, सजीव के बारे में वह डिस्क्राइब नहीं करती है। मतलब उनका कोई भी चित्र जिसमें इंसान होगा, कोई लेडी होगी, कहीं नदी पर जा रही है पानी भरने, ऐसा चित्र आपको उनके इसमें दिखाई नहीं देगा। और कॉपीज ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, और किसी भी तरह का इन्वायरमेंट का कोई सीन उन्होंने ड्रॉ किया है, उसको पेंट किया है, ऐसा भी आपको कभी दिखाई नहीं देगा। मीन्स नन ऑफ हिज पेंटिंग्स डिपिक्ट लाइक ह्यूमन फिगर्स और कॉपीज of scenes from his environment। His paintings belong to the abstract style of paintings। देखिए सईद हैदर रजा जो पेंटिंग करते हैं वो कौन से स्टाइल में आती है? His paintings belong to the abstract style of paintings। abstract स्टाइल में उनकी पेंटिंग्स को समावेशित किया गया है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल क्या है उसके बारे में अभी पढ़ना है। सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी
एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए सच पेंटिंग्स मतलब सईद हैदर रजा जो पेंटिंग्स बनाते हैं वह पेंटिंग, सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब सईद हैदर रजा की जो पेंटिंग बनती है वह किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर्ड नहीं होती। इंस्पायर्ड होना मतलब प्रेरित होना। So his paintings are not inspired by any external factor. External factor मतलब बाह्य घटक। बाह्य घटक मतलब जो हमें आते जाते, कहीं बैठे हुए, कहीं चलते हुए जो कुछ हमें बाहर दिखाई देता है, that's called external factor, बाह्य घटक। Means his paintings are not inspired by external factor। तो फिर वो कहाँ से निर्माण होती है? तो आगे उन्होंने बताया है, they originate when the artist tries to peep into his own inner mind। देखिए क्या कहा है, so they मतलब कौन? his paintings, सईद हैदर रजास पेंटिंग्स ओरिजिनेट होती है मतलब निर्माण होती है, बॉर्न होती है, when the artist tries to peep into his own inner mind। जब कोई कलाकार, when the artist tries to peep, ट्राई करना, प्रयास करना, टू पीप करना मतलब झांकना, किसी के अंदर घुसना। They originate when the artist tries to peep into his own inner mind। जब कोई कलाकार अपने अंतर मन में झांकता है, अंतकरण में झांकता है, at that time such paintings born। और उस समय इस तरह की पेंटिंग्स क्या होती है? बॉर्न होती है, ओरिजिनेट होती है। मीन्स दिस Sayyid Haidar Raza's paintings are not inspired by external factor, they are inspired by inner factor। मतलब वह जब आप अपने अंतर्मन में झांकोगे तब जाके ऐसी पेंटिंग्स ओरिजिनेट होती है। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in a different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places। देखिए आगे उन्होंने कहा है they are made। वो कैसे बनती है, वो कैसे बनी होती है, उसका भी आंसर उन्होंने किया है। सईद हैदर रजास की जो पेंटिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की जो पेंटिंग्स है, हाउ दे मेड मतलब वो कैसे बनती है, तो उन्होंने कहा है बाय अरेंजिंग सर्कल्स। अरेंज करना है आपको, दे अरेंज सर्कल्स, वो सर्कल्स को अरेंज करते हैं। सर्कल मींस गोला, ट्रायंगल्स त्रिकोण, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डॉट्स इन अ डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब लाइंस का, डॉट्स का, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब ज्योमेट्रिक शेप्स का वह बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उनका यूज करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, किसी खास तरीके से उन्हें अरेंज किया जाता है। इफेक्टिव टेक्निक्स, प्रभावशाली तकनीक का यूज करके उन्हें अरेंज किया जाता है। एंड अप्लाइंग पेंट, और उसके अंदर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है उन ज्योमेट्रिक शेप्स को। एंड अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, और उसको कलर भी किया जाता है इस तरीके से, अट्रैक्टिव कलर होते हैं कि आप उन्हें देखते रह जाते हो, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि आइए हमें देखिए। और आगे कहा है अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। और कहीं कहीं जानबूझ के संतुलन स्थापित किया जाता है, अचीविंग बैलेंस किया जाता है वहां पे। और कुछ जगह ऐसी होती है उस पेंटिंग में कि वहां पर क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस, और जानबूझ के वहां पर असंतुलन निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से सईद हैदर रजा की जो पेंटिंग्स है वह बनती है। They originate when the artist tries to peep into his own inner mind। जब कोई कलाकार अपने अंतर्मन में झांकता है तब जाके ऐसी पेंटिंग सामने आती है, वह पैदा होती है। और वो किस तरीके से बनती है, बाह्य घटकों से वह प्रभावित नहीं होती है, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। Now the next paragraph. Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy। His picture seemed to radiate peace and life at the same time। We realize that
The painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. देखिए सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने कहा है रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ही फाउंड हिज पेंटिंग्स, हाउ सईद हैदर रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स, या फिर हाउ डिड ही फाइंड हिज पेंटिंग्स, इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। सो रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स ढूंढी, मतलब कैसे उन्हें ये पेंटिंग करने का कहां से मतलब वो इंस्पायर हुए। रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट। थ्रू उन्होंने अध्ययन किया। he found his paintings through his study of Indian art and its heritage, भारतीय कला, भारतीय विरासत, हेरिटेज मतलब विरासत, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक संबंध जिसे कहा जाता है, एंड फिलॉसफी, फिलोसोफर्स फिलॉसफी मतलब दार्शनिक का दर्शन। इन सब चीजों से उन्होंने ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई है उसका अध्ययन किया, इन सब चीजों का अध्ययन किया, और इसी में से उनके अंतर्मन में झांकने के बाद ये जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वह बनी है। His pictures seem to radiate peace and life at the same time। देखिए his pictures, उनके जो चित्र है, पेंटिंग्स है, seem, his pictures seem to radiate peace, radiate करना means spread करना, फैलाना। His pictures seem to radiate peace and life at the same time। जब हम उनके चित्रों को देखते हैं, when we see his pictures at that time, we feel that, हमें ऐसे फील होता है, these are radiating peace, ये जो चित्र है वो शांति को फैला रहे हैं, they are radiating peace, शांति को वो स्प्रेड कर रहे हैं, पीस को स्प्रेड कर रहे हैं, एंड लाइफ एट द सेम टाइम, ऐसे लगता है कि उसमें कोई सजीवता छिपी हुई है, जीवंतता उसके अंदर है, और वह शांति को चारों ओर फैला रहे हैं, ऐसे उनके पिक्चर्स को देखने के बाद महसूस होता है। We realize that the painting is a visible form of very deep thought। देखिए आगे के सेंटेंस में उन्होंने कहा है when we see the pictures or the drawings of Sayyid Haider Raza at that time, we realize that, उस समय हम रियलाइज करते हैं, क्या करते हैं, the paintings is a visible form of a very deep thought। उनकी जो पेंटिंग्स है जो सईद हैदर रजा ने बनाई है वह उनके गहरे विचारों का एक दृश्य उन्होंने हमारे सामने रखा है। ऐसे लगता है कि उनके अंदर के गहरे विचार उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, किसके द्वारा, तो पेंटिंग्स के द्वारा। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है बहुत ही कम ऐसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होगी जो व्यूअर्स के साथ बातें करते हैं। व्यूअर्स मतलब पेंटिंग्स को देखने वाले। बहुत ही कम लोगों की पेंटिंग्स जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में आती है वह व्यूअर्स से बातें करती है, लेकिन रजा की जो पेंटिंग्स है वह बहुत ही ज्यादा, मतलब अदर्स से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनसे कई अधिक गुना इनकी जो पेंटिंग्स है व्यूअर से कम्युनिकेट करती हुई नजर आती है। मींस हिज पेंटिंग्स आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स। रजाज पेंटिंग्स आर मोर इफेक्टिव, मतलब वो इफेक्ट डालती है लोगों के ऊपर, वह व्यूअर से बातें करती है, तो वह जो ताकत है वह किसी दूसरे पेंटर्स के पेंटिंग में नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at JJ School of Art in Mumbai. Later, he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards। यहाँ तक देखते हैं। देखिए
Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. ये जो सईद हैदर रजा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? He was born in a small village, एक छोटे से गांव में हुआ था। और वो छोटा सा गांव कहाँ का है? इन मध्य प्रदेश, एमपी जिसे हम जानते हैं, एमपी के किसी छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और उनके गांव का नाम था ककैया विलेज, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था। रजा वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज एंड द विलेज नेम इज ककैया विलेज, मंडला डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मंडला इस डिस्ट्रिक्ट के ककैया इस छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12। देखिए, एट द एज ऑफ 12 ही स्टार्ट टू पेंट, मतलब उम्र जब वो 12 साल के थे तभी से उन्होंने अपना ये पेंटिंग का कार्य ही बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया था। ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय। ही स्टडीड आर्ट, उन्होंने आर्ट की पढ़ाई की, कहा कि एट चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर। चित्रकला महाविद्यालय जो कि नागपुर में स्थित है, वहां से उन्होंने अपने आर्ट की पढ़ाई की शुरुआत की थी। एंड देन एट द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। और नागपुर के चित्रकला विद्यालय से, महाविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, मतलब मुंबई के जेजे स्कूल से उन्होंने की। लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। और मुंबई की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। फ्रांस में वह आर्ट की पढ़ाई करने के लिए गए। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों बाद जब वो फ्रांस में गए, आफ्टर फ्यू इयर्स ही डिसाइड टू सेटल इन फ्रांस। ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने निश्चय किया कि मुझे फ्रांस में ही सेटल होना है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब वो फ्रांस में गए, वहां पर सेटल हुए, फिर भी उन्होंने भारत के साथ उनका जो रिलेशन था उसे कभी ब्रेक होने नहीं दिया। तो यही खासियत होती है बड़े बड़े लोगों की, भले वो कहीं भी रहे लेकिन वह बिल्कुल बंधे होते हैं कुछ रिश्तों में। बिल्कुल ऐसे ही सईद हैदर रजा, वह भारत के साथ, भारतीय रिश्तों के साथ उन्होंने कभी अपना नाता तोड़ा नहीं। Later he went to France to study art. After a few years he decided to settle in France. His wife was French. His wife was French, मतलब फ्रेंच में सेटल होने के बाद उन्होंने वहीं पर किसी लेडी से, फ्रेंच जो फ्रांस की थी, फ्रांस के जो होते हैं उन्हें फ्रेंच कहा जाता है, जैसे इंडिया के इंडियन होते हैं, लाइक दैट फ्रांस के फ्रेंच लोग होते हैं। तो वहीं पर किसी फ्रेंच लेडी के साथ उन्होंने शादी की। मैं उनकी वाइफ का नाम आपको बताता हूँ, जैनी मोंगिलत। जैनी मोंगिलत वाज द नेम ऑफ सईद हैदर रजाज वाइफ। तो वहां पर वो सेटल हुए और वहीं पर उन्होंने जॉनी मोंगिलत के साथ विवाह किया। ही ओन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। ही ओन, उन्होंने जीते मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मिलते हैं वो अवार्ड्स उन्होंने जीत लिए थे। ही वॉज हॉनर्ड विथ ऑल 3 पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the bindu or point came to be the core of his paintings. He described his works in these words: "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space and light." देखिए, यहां तक देखते हैं। He was honored with all the 3 Padma Awards. He was honored, उन्हें सम्मानित किया गया था। All the 3 Padma Awards, मतलब जो पद्म अवार्ड्स भारत में दिया जाता है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में, जैसे भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण जो दूसरे स्तर पे है, पद्म भूषण इज अ 3rd एंड पद्मश्री इज अ 4th। तो उन्होंने ये तीनों अवार्ड्स जीते हैं। कौन से तीनों अवार्ड्स? ही वाज हॉनर्ड विथ ऑल द 3 पद्म अवार्ड्स। तीनों पद्म अवार्ड्स उन्हें
उन्हें उस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ये तीनों अवार्ड उन्हें, जैसे पद्मश्री जो मिला, सॉरी, पद्मश्री उन्हें मिला था 1981 में, और उसके बाद 2007 में उन्हें पद्म विभूषण इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड देन 2013 में उन्हें पद्म विभूषण इस अवार्ड से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। सो ही वाज हॉनर्ड विथ ऑल 3 पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। विथ ऑल 3 अवार्ड्स एंड हॉनर्स, हिज पेंटिंग्स were exploring a spiritual metaphysical path। देखिए, ये सब अवार्ड्स जीतने के बाद भी, विथ ऑल 3 अवार्ड्स, ये अवार्ड तो उन्हें मिले थे, एंड हॉनर्स, उन्हें बहुत सम्मान भी मिला था। हिज पेंटिंग्स वेर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग करना मीन्स खोज करना। His paintings were exploring, try to show a spiritual metaphysical path। उनकी जो पेंटिंग्स है वह हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। स्पिरिचुअल सभी को पता है, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक मार्ग जिसे कहा जाता है, उस मार्ग का मतलब वो मार्ग हमें दिखाती है उनकी पेंटिंग। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट, बिंदु मतलब ही पॉइंट, ग्रेजुअली धीरे धीरे, द बिंदु और पॉइंट came to be the core of his paintings। core मतलब सेंटर पॉइंट। धीरे धीरे जो बिंदु होता है, इंग्लिश में हम जिसे पॉइंट कहते हैं, वह पॉइंट उनके पेंटिंग्स का क्या बना, केंद्र बिंदु बना। became the core of his paintings। core बना मतलब केंद्र बिंदु बना, सेंटर पॉइंट बना। he described his work in these words। और वह अपने कार्य को कुछ शब्दों में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। He described his work in these words। देखिए वो क्या वर्ड्स है। सईद हैदर रजा said, my work is my own inner experience। मेरा जो कार्य है, my work, मैंने जो काम किया है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो मैंने बनाई है, तो कहते हैं my work is my own inner experience। मेरा कार्य वो मेरे अंतकरण का अनुभव है, अंतर मन का अनुभव है। एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। और इन्वॉल्वमेंट जो अंतर्भाव होता है किसके बीच, विथ द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, इस प्रकृति के अंदर की जो गूढ़ता है उसके साथ जो मेरी इन्वॉल्वमेंट है और मेरे इनर एक्सपीरियंस है। एंड फॉर्म, और प्रकृति के वह फॉर्म और जो अलग अलग रूप मैंने देखे होंगे, इन सब को मिला के मेरा कार्य बना है। एंड विच इज एक्सप्रेस, और उसी को मेरे इनर एक्सपीरियंस, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड फॉर्म ऑफ नेचर, इन सब को मिला के जो मुझे लगा, विच इज एक्सप्रेस इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट, और उसी को मैंने लोगों के सामने एक्सप्रेस किया है। कैसे, कलर के माध्यम से, लाइंस के माध्यम से, स्पेस मतलब आकाश जिसे कहा जाता है, एंड लाइट प्रकाश जिसे कहा जाता है। कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट के माध्यम से मेरे अनुभव को, मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था, जो मेरा नाता था इस प्रकृति के साथ, और उसके जो फॉर्म थे, उससे मैंने अनुभव लेके जो मुझे एक्सप्रेस करना था वह मैंने लाइन, कलर, स्पेस और लाइट के माध्यम से लोगों के सामने रखा। ऐसा वह अपने कार्य को डिस्क्राइब करते हैं। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words। देखिए आगे वो कहते हैं, sometimes an artist's thoughts, किसी कलाकार के विचार, appear to be complex or even complicated when they are expressed through words। जब कोई कलाकार अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने रखता है, at that time his thoughts will be complicated और complex। मतलब उस समय उनके जो विचार होते हैं उनको समझना किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब कभी कभी हम उनके विचारों को, वो क्या कहना चाहते हैं उसे हम समझ नहीं पाते हैं। यही बात उन्होंने कही है। समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट्स, कभी कभी किसी कलाकार के जो विचार होते हैं, अपीयर मतलब दिखाई देना, टू बी टू कॉम्प्लेक्स, इतने
क्लिष्ट होते हैं और इवन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, और जब उन्हें शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने रखा जाता है तो वो बहुत ही कठिन, मतलब समझने के लिए बहुत कठिन होते हैं। सो फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क, हिज पेंटिंग्स। और इसीलिए सैयद हैदर रजा कहते हैं फॉर हिम, उनके लिए द इफेक्टिव मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन करने का कोई प्रभावशाली साधन है उनके कार्य को अगर आप लोगों के सामने रखना चाहते हो, वो भी प्रभावशाली तरीके से रखना चाहते हो, तो वो तरीका है हिज पेंटिंग्स। मतलब उन्होंने अपने पेंटिंग्स के माध्यम से अपने कार्य को, अपने विचारों को, अपने इनर थॉट्स को, जो बहुत ही गहरे थे, डीप थे, उन थॉट्स को उन्होंने लोगों के सामने रखा। कैसे रखा? बाय हिज पेंटिंग्स, उन्होंने पेंटिंग करके रखा। रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी, वो एक महान सृजनशील व्यक्ति थे। हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, मतलब उनकी जो पेंटिंग थी वेरी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब जो भाव प्रकट करती है, लोगों के साथ बातें करती है। इसके पहले हमने देखा कि वो व्यूअर के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। तो इस पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94। देखिए, ये जो महान आर्टिस्ट थे, he passed away on 23rd July 2016 at the age of 94। 23 जुलाई 2016 को when he was 94 years old, at that time he passed away, वह हमसे बहुत दूर हमें अलविदा कह के चले गए। लिविंग बिहाइंड अ लीजेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स, और उन्होंने विरासत में हमारे लिए क्या छोड़ा? लिविंग बिहाइंड अ लीजेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स, उन्होंने उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल की जो पेंटिंग्स है वह हमारे लिए वो छोड़ गए, उनकी वो विरासत है, वह इस संसार को वह विरासत दे गए। अचीव थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइंस एंड कलर्स, जो पेंटिंग्स उन्होंने कैसे अचीव की थी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइंस एंड कलर, मतलब असाधारण कार्य उन्होंने उस कलर और लाइन के माध्यम से, जो ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करके उन्होंने बनाए थे, उस लेजेसी को वह हमारे लिए छोड़ गए। दैट डिपिक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन, मतलब डिपिक्ट करना, डिस्क्राइब करना, शो करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन। उनके पेंटिंग्स को देखने के बाद उनकी असाधारण रचना, संरचना जो होती है वह हमें दिखाई देती है कि उन्होंने किस तरीके से इस ज्योमेट्रिक शेप के द्वारा उसमें ब्लू और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके इम्प्रेसिव पेंटिंग्स लोगों के सामने रखी और जो व्यूअर्स के साथ बातें करती थी। देखिए, आप चित्र में देख सकते हो कि ये पेंटिंग्स है, ज्योमेट्रिक शेप्स, वहां पे आपको सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइंस, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और यही पेंटिंग लोगों के ऊपर बहुत असर करके गई, जिसके द्वारा इन्हें बहुत सारी सफलता अपने लाइफ में उन्हें प्राप्त हुई। सो इन दिस वे टुडे we learn about the story of reading works of art Sayyid Haider Raza. This story is divided into two parts. So today we cover first part of this lesson. If you have any doubt, you can ask me. Yes. Yes, बेटा सुमित। सुमित यादव। यस बेटा, बोलिए।
Yes, please say. If you have one doubt, I will ask you some question. Are you ready? Now tell me the answer. Who was Said Haider Raza? Who was Said Haider Raza? Give me the answer. Yes, Sumit. Mahendra Gupta, yes. Fayed Rajaif Atif. Who was Said Haider Raja? So your answer should be the Said Raza was renowned Indian artist of painter. इस तरीके से आंसर करना है. The next question is, where was Raza born? Where was Raza born? Raja Yes. was born in Raja was born in a small village in Madhya Pradesh. Very good. He was born in a small village in Madhya Pradesh. Okay, the next question is, from what age did Raza start to paint? From what age did Raza start to paint? Yes. Good morning, sir. Yes, beta. Good morning. 12-year age start is Raja paint. फुल सेंटेंस में बोलने की कोशिश करनी है. जैसे आपको कहना है कि 12 ईयर एज में, तो एट द एज ऑफ 12 he started to paint. At the age of 12 Said Haider Raja started to paint. Is it clear? Yes, sir. Okay, very good. My next question is, where did he study of art? Where did he study of art? Yes, Rishikesh. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Sir, Raja study at Indian artist simple geometry shape. Please try to understand and listen the question. Where did he study of art? Where? Where did he study of art? Where मतलब कहाँ उन्होंने आर्ट की पढ़ाई कहाँ की? Where did he study of art? Yes, Anushka. Good morning, sir. Good morning, बेटा. सर मैं बोल रही हूँ ना. हाँ बोलिए बोलिए, चलिए, no problem. He went to France to study art. He went to France to study art. No, okay. लेकिन यहाँ पर जैसे
वेयर डिड ही स्टडी ऑफ आर्ट, तो आपको वहां पे बताना है नागपुर में भी उन्होंने पढ़ाई की, मुंबई में भी की, बराबर। एंड देन ही वेंट टू फ्रांस। सो नागपुर एंड मुंबई ऑल्सो इंक्लूड इन योर आंसर, तो ये दो भी आपके आंसर में इंक्लूड होने जरूरी है। इज इट क्लियर? Oh, yes, sir. Okay. So next question is, when did he pass away? When did Sayyid Haider Raja pass away? Miss Dolly. Raja passed away on 23 July 2016 at the age of 94. Very good. This is the right answer. He passed away on 23rd July 2016 at the age of 94. The next question is, which awards were honored to Sayyid Haider Raja? Which awards were honored to Sayyid Haider Raja? Miss Dolly Valmiki. Yes. Miss Dolly, try to answer. Sumit Yadav. Sumit, beta bolo. Sir, please repeat the question. Okay. Which awards were honored to Sayyid Haider Raja? Did you hear? Sir, Yes, sir. Yes, beta. Rich award दो three. Rich award. Sayyid Raja 3 awards. Sayyid Haider Raja was honored with all 3 Padma Awards. Padma Awards के 3 नाम आए हैं, एक है पद्म श्री, एक है पद्म भूषण, and last one is Padma Padma Vibhushan. Okay. Okay. तो Yes, sir. आगे का सवाल है, what is Sayyid Haider Raja popularly known as? What is Sayyid Haider Raja popularly known as? Yes, Rishikesh. What is Sayyid Haider Raja popularly known as? Syed Hari Ras, popularly known as Ras, was a renowned Indian artist. He was popularly known as a Raja. सईद हैदर रजा, यह रजा इस नाम से लोकप्रिय थे। बस इतना ही आंसर आपको करना है। ओके, Yes, sir. so now please tell me the opposite word of national. National, International. international, very good. Now tell me ordinary. Ordinary का opposite word देना है। Ordinary. नो बेटा, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण। इज इट क्लियर? Yes, sir. So in this way, today we'll learn about the story of reading works of art. In this lesson, we learn about the life of
Said Haider Raja and his abstract paintings. I hope you like this lecture